Like we sang in that song जैसे कि हमने वो गीत in गाया Hindi, Lord, to save us from our sin, you gave your son as a sacrifice. कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को बलि के रूप में दिया। Do you remember that? क्या उस गीत को आप याद करते हैं? We just sang it. हमने अभी अभी गाया To save us from our sin, कि उसने हमें पापों से बचाया। you gave your son as a sacrifice. तूने अपने बेटे को जो है बलि के रूप में दिया। Or have you forgotten that we sang that? क्या आप लोग गीत गा के भूल चुके हैं उसको? How did you feel when you read those words? आपने जब उन शब्दों को पढ़ा तो आपको कैसा लगा? To save me from my sin, मेरे पापों से बचाने के लिए you gave your son as a sacrifice. तूने अपने बेटे को जो है बलिदान के तौर पे दे दिया। How can you sing that without feeling moved in your heart? और बगैर आपका दिल हिले आपने किस प्रकार से उस गीत को गाया? You see how we become with saying things which we don't mean. देखिएगा किस प्रकार से हम बगैर मतलब रखे हम बोलते हैं। This is the tragedy of Christianity today. और यही अभागापन है हमारी मसीहत कलीसिया में। So I often say Christians tell more lies to God on Sunday than on any other day. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इतवार के दिन मसीह लोग सबसे अधिक परमेश्वर से झूठ बोलते हैं दूसरे सभी दिनों से They ज्यादा, don't even think what they're saying. क्योंकि वो बगैर सोचे ही गीत गाते हैं। I want to encourage you to take seriously every song you sing. मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हर एक गीत को आप गंभीरता पूर्वक लें, The reason is we don't recognize the presence of Jesus here. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। Can you imagine if Jesus was here physically? ऐसे सोचिएगा शारीरिक तौर से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है And I sing, yeah, my Jesus, I love you. I know you are mine. For thee all the pleasures of sin I resign. Can you और imagine singing like that? इस प्रकार से सर को इधर उधर आंखों को इधर उधर देखते हुए भी कि बोले कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू बहुत खूबसूरत I give परमेश्वर up all the pleasures of sin. I give up the pleasures of sin. है और मैं सारे जो दबाव है पाप के उसको छोड़ता हूँ। The sacredness of singing has disappeared. तो उसकी जो पवित्रता है वो दूर हो जाती है। And it's because of these modern Hillsong type of songwriters और जैसे कि हिलसॉन्ग के जो लेखक वगैरह हैं who wrote for money, जो कि पैसों के लिए लिखते whose हैं pastors will come in underwears on the platform. और उनके पासवान लोग जो है वो अंडरवेयर में आएंगे You see that on YouTube. और वो यूट्यूब में देखेगा The whole world can see it. और पूरे लोग उसको देख सकते हैं। Absolutely shameful. देखिएगा कितना लज्जापूर्वक बात है। Am I going to follow such people? क्या ऐसे लोगों का हम पीछा करेंगे? Not in 1,000 years. और अगले 1000 साल में भी नहीं। I'd rather follow those old songwriters. जो पुराने लेखक हैं It is money that has taken over the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य को पैसा जो है उसके ऊपर ले रहा है। That is why we have taken such a strong stand against money. इसलिए हमने पैसों के विरोध में जो है कदम उठाए हैं। We have 120 elders in our churches. Nobody takes money for their preaching. और हमारे कलीसिया में 120 बुजुर्ग हैं लेकिन कोई भी प्रचार के लिए पैसे नहीं लेता है। All the books we have written, there's no royalty for those books. और जितने किताब लिखे गए हैं उसमें भी कोई रॉयल्टी नहीं लेते In हैं। Western countries, everybody gets millions of rupees royalties for the books they write. और पाश्चात्य देशों में देखते हैं कि जो किताबें वो लिखते हैं उसके लिए सैकड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते हैं। Christians, pastors, every one of them. और पास्टर्स और जो अगुवे लोग हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं। It's money that has led people away from God. और जो पैसा है यही परमेश्वर से इंसान को दूर करता है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, I cannot change your hearts. I can only warn you. मैं आपके दिलों को नहीं बदल सकता। See the result of this type of singing in your own congregation. और अपनी सभा के अंदर इस प्रकार के गीत संगीत गाने के फलस्वरूप क्या होता है देखिएगा। We say we want wholehearted young people who are passionately in love with Jesus. हम चाहते हैं कि पूरे दिल से जो परमेश्वर के प्रति जुनून दिखाते हैं वैसे जवान लोग चाहिए। I'll tell you 3 ways in which I have personally learned to be passionately in love with Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रति जुनून, उनके प्रति प्रेम दिखाने के लिए 3 ऐसे मार्ग हैं। You take it seriously, it can be true for you as well. अगर जो आप इसे भी गंभीरता पूर्वक लेंगे तो ये भी आपके लिए यथार्थ बनेगा। See, the difference in the old covenant and the new covenant is this. पुरानी वाचा और नई वाचा में जो भिन्नता है वो ये है, Well, many differences, but one is this. और उसमें से कई सारे वचन हैं लेकिन उनमें से एक, In the old covenant, you obeyed God out of fear. और पुराने वाचा में देखते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं भय के कारण Or out of selfishness. या स्वार्थीपन से। I'll show you that in Deuteronomy 28. व्यवस्था विवरण 28।
Sometime when you get time, you must read this chapter. जब आपके पास समय मिले तो आप इसको पढ़िएगा। This is the old covenant gospel. और ये पुरानी वाचा का सुसमाचार है। You know what it says? क्या आप जानते हैं क्या कहता है? It's got two parts. ये दो हिस्से में है। The first 14 verses, पहला 14 जो वचन है, God says, परमेश्वर कहता if है, you obey me, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन I करोगे, will bless you materially and physically. मैं तुम्हें वस्तु चीजें देकर तुम्हें आशीष दूंगा You'll make plenty of money. और तुम बहुत सारा धन कमाओगे You will never be in debt. और कभी कर्जदार नहीं बनोगे। Your children will be blessed. Your fields will be blessed. Your animals will be blessed. तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जानवर, तुम्हारी खेती बाड़ी जो है Because आशीषित होगा, those days their wealth was in their fields and their animals. क्योंकि उन दिनों में धन यानी कि उनका जो खेती बाड़ी है और उनके जानवर है। You obey me, all will be blessed materially. तुम अगर जो मेरी आज्ञाएं There's- मानोगे तो वस्तु के तौर से तुम आशीष पाओगे। Not one word about victory over sin. लेकिन वहां पे पाप के ऊपर जय के बारे में And एक भी वचन नहीं है। Obedience was all external. और जो आज्ञा पालन है वो बाहरी तौर से है, Don't murder, don't kill, यानी कि don't commit adultery, कत्ल ना करें, व्यभिचार ना करें don't tell lies, और झूठ ना बोलें, don't bear false witness in the court, दूसरों के प्रति झूठा गवाही ना दें and things like this. और ऐसी Don't बातें, worship idols, और मूर्ति पूजा ना करें and many other commandments about external things. और बाहरी तौर से बहुत सारी आज्ञाएं। Pay your tithe. अपना That टाइट means दें, God दशमांश has दें, blessed your field and your animals. Give 10%, और अपने जानवरों में से और अपने खेती बाड़ी के जो फसल है उसमें से सबसे बेहतरीन so चीजें that the दो, Levites can take care of their needs. ताकि लेवी लोग जो है अपनी देखभाल कर सके। And then the remaining 54 verses और बाकी जो 54 वर्सेस तक है is threats of judgment. और वो है न्याय के बारे में। If you don't obey me, अगर जो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं the Lord करोगे will smite you, verse 27, with sicknesses from which you can never be healed. और ऐसे ऐसी बीमारियां जो परमेश्वर देगा जिससे कभी तुम ठीक नहीं हो पाओगे। So it was the offer of material prosperity or the threat of sickness and all which made people obey. और उन जमाने में लोग इसलिए आज्ञा पालन करते थे ताकि वो वास्तविक तौर से आशीष पाए या फिर बीमार ना पड़े। But that is the gospel being preached today also और वही सुसमाचार आज भी प्रचार किया जाता है by many preachers. कई प्रचारकों के Come द्वारा। to Jesus, प्रभु यीशु मसीह के He'll पास make आए। you rich, वो आपको धनाढ्य बनाएगा, He will heal you, वो आपको चंगाई He'll देगा, give you a better house, better car. वो आपको अच्छा मकान, अच्छा घर देगा। Tell me, is there anybody in the world who doesn't want to become financially rich? क्या संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो धनाढ्य नहीं बनना चाहता? Is there anybody in the world who doesn't want to be physically healthy? क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो शारीरिक तौर से स्वास्थ्य नहीं रहना चाहता? Not even one. कोई एक भी व्यक्ति नहीं। Even a beggar wants to be rich. यहाँ तक कि भिखारी भी अमीर बनना The चाहता है billionaire wants to be more rich. और जो करोड़पति है वो और अमीर बनना चाहता है। Everybody in a hospital wants to be healed. और जितने भी अस्पताल में पड़े हुए हैं वो लोग मरीज लोग चंगा होना चाहते हैं। If that is the gospel with which Jesus came, why did the world kill him? तो फिर अगर जो यही सुसमाचार लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में है तो उन्होंने उसको क्यों क्रूस पे चढ़ाया, मारा? Why did the world, it says he came to the world and the world did not receive him. फिर संसार में आया और संसार ने उसको क्यों नहीं ग्रहण किया? Why would the world reject someone who came offering money and health? फिर ऐसे एक व्यक्ति जो पैसा देने के लिए, चंगाई देने के लिए आया, उसका संसार ने तिरस्कार क्यों किया? That is the clearest proof that that is not the gospel that Jesus preached. और ये सिद्ध करता है कि ऐसा सुसमाचार लेकर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। But how is it so many millions of Christians are believing that today? फिर लाखों करोड़ों जो है विश्वासी लोग क्यों ऐसा विश्वास करते I हैं? will tell you. मैं बताना चाहता हूं, Because today's Christians don't read the Bible. क्योंकि आज के मसीह लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं They पढ़ते हैं, spend more time in a day watching television than reading the Bible. और वो ज्यादा समय जो है टेलीविजन देखने में बिताते हैं ना कि बाइबल पढ़ने में। And the parents sit with their children watching television more than reading the Bible. और बच्चों के साथ माता पिता ज्यादा समय टीवी देखने में बिताते हैं, बाइबल पढ़ने में नहीं। And then they say, oh, my children are going astray. फिर वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है मार्ग You से know, भटक गए हैं। it's like you go to a doctor और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, and say, my children are sick. बोलते हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं। Why? What did you feed them? तुमने उनको क्या खिलाया? Well, I gave them a spoonful of poison every day. मैंने हर दिन उनको चम्मच भर के जहर पिलाया। Not much, doctor, just one spoon of poison every day. ज्यादा नहीं पिलाया, केवल एक चम्मच पिलाया।
And the doctor says, "Are you crazy? तो डॉक्टर बोलेगा क्या तुम पागल हो? You give a spoonful of poison every day to your child and then you wonder why they are sick? और आप एक चम्मच भर के जहर पिलाते हो फिर बोलते हो कि वो बीमार है? You sit watching television with your children every day and wonder why they are not following Jesus? हाँ, हर रोज जो है उनके साथ टीवी देखने में समय बिताते हो फिर वो क्यों नहीं रास्ते से There is no बचेंगे? difference between that and feeding them poison every day and wondering why they are sick. और इसमें कोई भिन्नता नहीं, आप जहर पिला रहे हैं और फिर टीवी दिखा रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, But फिर you वो मार्ग say- से तो अवश्य भटकेंगे, बीमार But होंगे। what to do, brother? They love that poison. हाँ, क्या करें भाई, वो उनको ये जहर पसंद है। So because they love it, you feed it. Have you got some sense? हाँ, क्या उनको ये पसंद आएगा तो क्या आप उनको जहर पिलाएंगे? We can't do anything about what our children do outside the house. और घर के बाहर वो क्या करते हैं हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। But at least inside our house. कम से कम हम घर के अंदर तो उनके प्रति ध्यान पूर्वक हो सकते हैं। I remember when my children were growing up, I said, I'm the head of this house, remember. जब मेरे बच्चे बढ़ रहे थे तो मैंने उनको कहा कि ध्यान दे कि मैं इस घर का मुखिया हूँ। There's certain type of music I will never allow in this house. कुछ प्रकार के जो गीत संगीत है मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा। Certain books and magazines I'll never allow. और कुछ प्रकार के जो किताबें हैं वो बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा घर पे रखने I के लिए। don't care how much you argue or whatever it is. मैं नहीं जानता कि तुम कितना मुझसे बहसबाजी करोगे। I am the head of this house and I will never give up that headship. और मैं इस घर का मुखिया हूँ और अपना मुखियापन कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा। When you leave my house, do जब तुम what you घर से like. जाओगे Do what you like. तुम्हें अच्छा लगे करो, Then you're on your own. तो फिर तुम अपने पर हो। And if you go astray after you have left my house, मेरे घर को छोड़ने के बाद मार्ग से भटक जाते हैं, गलत राह पे जाते हो, I will not blame you. फिर मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, I'll blame myself. मैं अपने ऊपर दोष I'll ठहराऊंगा। say 18 years I had you in my house. और 18 साल तक मैंने तुम्हें अपने घर Because पे पाला। all my 4 sons left home for college when they were 18. और 18 के बाद चारों के चारों जो मेरे पुत्र And I हैं said, वो कॉलेज में चले गए। 18 घर से years I बाहर। had you in my house 18 साल तक मैंने उनको घर पर रखा। and I did not guide you in the right way. क्या मेरे को समय नहीं मिला कि सही मार्गदर्शन करने के लिए? Whom should I blame? Myself. फिर मुझे किसको दोषी ठहराना है? मुझे खुद को। But, okay, if I made a mistake, अगर जो हो सकता है मैंने गलती किया हो, I said, you know what, I'll pray for you. क्या जानते हो तुमने If I क्या प्रार्थना किया? hear you're going astray, अगर जो मैं सुनता हूँ कि तुमने गलत मार्ग पकड़ा, I'll pray you'll have a car accident. तो मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम एक दुर्घटना में I फंस जाओ। pray that God will break your legs. मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी टांगे टूट जाए। I pray that you'll lie in a hospital with broken legs. और मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम अस्पताल में भर्ती हो जाए टूटे हुए That पांव के is साथ। much more preferable than you're going to hell. और तुम नरक में जाने से बेहतर यही है। I meant it. और मैं इसका मतलब रखता हूँ I take it seriously. और मैं इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। Because why did God unite me with my wife and give us children? फिर क्यों परमेश्वर ने मेरे को मेरी पत्नी के साथ जोड़ा और हमें संतान दिए? It says in Malachi chapter 2, listen to this. मलाकी दूसरे अध्याय में देखते हैं, Malachi chapter 2 verse 15. मलाकी 2 उसका 15 में देखते हैं। And there are many, it's translated in slightly different ways in some translations. कुछ ट्रांसलेशनों में तर्जुमा में जो है अलग तरीके से किया गया But है। here is what it says in the margin of my Bible. देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है करके हम पढ़ेंगे। Malachi chapter 2 verse 15. मलाकी 2 उसका 15। So it may be a little different in your translation, हो सकता है कि आपके बाइबल में थोड़ा फर्क हो। but here's what it says. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Why did the Lord make you one with your wife? Just translate me. और तुम में से Why did the Lord make you one with your wife? तुम्हारी पत्नी के साथ परमेश्वर ने एकजुट क्यों किया? Because he was seeking a godly offspring. क्योंकि परमेश्वर जो है योग्य संतान चाहता है। Godly, that means a God-fearing offspring. क्योंकि Children. परमेश्वर का भय मानने वाला एक संतान चाहते हैं। That's a great verse. और ये बहुत ही अच्छा एक Why did God make you one with your wife? परमेश्वर ने आपके पत्नी के साथ एकजुट क्यों किया? Because he was seeking godly children. क्योंकि वो ईश्वर भक्त बच्चों को संतान चाहता है। I understood why God made me one with my wife. और मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी के साथ क्यों जोड़ा। Not just to produce children. केवल बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं, Any idiot can produce children. कोई भी बेवकूफ भी बच्चों को पैदा कर सकता है, But to produce godly children. क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर के भय मानने वाले संतान पैदा हो। That depends on how I bring them up. और ये सब निर्भर रहता है किस प्रकार से मैं उनका पालन पोषण करता हूं।
That is a very important part of the new covenant. और ये नई वाचा का बहुत प्रमुख बात है